हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 ऑफ फ्लेमिंगो एंड लेसन नेम इज द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist. This lesson is all about the last lesson of own language, अपनी भाषा का अंतिम पाठ. This lesson tells us a normal human phenomena. When something is separated from us, we start valuing it. हमसे जब कोई चीज अलग हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है एंड वी सडनली स्टार्ट लविंग इट. द सेम वॉज द केस विद फ्रेंच आर नरेटर. बिफोर मूविंग टू स्टोरी, let us read about the author. Alphonse Daudet was a French novelist, 1842-1897. The last lesson, what is the background of the story? Short question है हमारे लिए जो यहाँ पर दिया गया है. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. Prussia इन सब से मिलकर बना था. In this story, French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. France was defeated and its two districts, Alsace and Lorraine, they were passed into Prussian hands. Prussia के अंडर हो गई थी. The story is about a school of Alsace. Alsace के एक स्कूल की कहानी है ये. I started for school very late that morning. I here stands for French, the narrator of our story. He was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. School going boy है और हमेशा आदत है लेट जाने की. तो that morning also he was very late. He was in a great dread. Dread, fear. Fear था किस चीज का? Scolding, डांट का. Why? एक तो लेट है. Secondly, this is the most important question for 2 marks of this lesson. Why was French afraid of that morning? या what was French afraid of? देखिए यहाँ हमें ना लेसन के साथ कुछ रीड एंड फाइंड आउट दिए गए हैं बीच बीच में, और उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है. What was French expected to be prepared with for school that day? उसे क्या प्रिपेयर करके जाना था? Why was he afraid? वो डरा हुआ क्यों था? First, he was late for school. Then, M. Hamel said that he would question them on participle. Participle is a topic of grammar. फ्रेंच लैंग्वेज में भी, सभी लैंग्वेजेस में होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में पार्टिसिपल का टॉपिक था. एम हैमल was a French language teacher. He had given them homework to prepare participles and French did not know even the first word about them. यानी एक भी अक्षर उसे नहीं आता था इसका. French was not an intelligent boy. लेकिन सिंसियर भी नहीं था. यही कारण है for a moment he thought of running away and spending the day out of doors. एक बार तो मन में लालच आया, क्यों आज स्कूल जाना है, छोड़ो ना, डांट तो लगेगी. बट क्यों? वाई वॉज इट सो? बिकॉज इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. कितना अच्छा दिन था. बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स फॉरेस्ट, जंगल. बर्ड्स चॉप कर रहे थे, पंछी चॉप कर रहे थे, चहचहा रहे थे वुड्स, फॉरेस्ट के किनारे पर. इन द open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और sawmill, एक sawmill था, एक आरा मशीन. वहीं पर उसके ओपन फील्ड में Prussian soldiers प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participles. फ्रेंच को क्या लगता है? कहता है ये ज्यादा टेम्पटिंग था. It was more attractive than the rule for participle.
एक वीक बच्चे को जो पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं है, यही फीलिंग आती है उसके मन में. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या दिखाई दिया उसने, कहता है वो, ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट टू स्टॉप. अपने आप को रोका, अपने मन में से इस लालच को रोका, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, चल पड़ा स्कूल के लिए. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. पहले न्यूज जानने का एकमात्र जरिया होते थे, शहरों में बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जाते थे. बुलेटिन, यू नो, न्यूज. तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो जैसे हमारे स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, ऐसे शहर का एक नोटिस बोर्ड था. वो लोगों को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती थी तो वो बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी. और टाउन हॉल में एक ऐसा बुलेटिन बोर्ड था. नरेटर कहते हैं, फ्रेंच कहता है कि जब वो वहां से जा रहा था, he saw a great crowd and for the last 2 years all the bad news had come from there. जितने भी 2 साल से उन्हें बुरी खबर ही मिल रही थी. बुरी न्यूज कैसे, क्योंकि फाइट चल रही थी, वॉर चल रही थी, और उस वॉर में फ्रांस हार रहा था लगातार. तो इसलिए कह रहे 2 साल से हमें बुरी खबर ही मिल रही थी, चाहे वो लॉस्ट बैटल हो या ड्राफ्ट हो. ड्राफ्ट होता है जबरदस्ती सेना में भर्ती करना, कंपल्सरली रिक्रूटमेंट या ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है, तो ही डिडंट स्टॉप देयर, बट ही वाज थिंकिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. आखिर इस बार क्या बात हो सकती है. Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." जैसे ही फ्रेंच जा रहा था, दौड़ते हुए, हाफते हुए, भागते हुए, वहां ब्लैकस्मिथ खड़े थे, वेक्टर. रिमेंबर द नेम, वेक्टर. He was reading the bulletin. He was there with his apprentice, with his assistant, with his helper. And he called after me. पुकारा, आवाज लगाकर क्या कहा? Don't go so fast, bub. Bub means boy. छोटा बच्चा, बेबी के लिए यूज किया जाता है. बच्चे, इतना तेज जाने की कोई जरूरत नहीं है. You will get to your school in plenty of time. बहुत टाइम है, आराम से चले जाना. I thought he was making fun of me and reached Hammel's little garden all out of breath. उसे लगा कि मजाक बना रहे हैं वेक्टर उसका, क्योंकि जनरली क्या होता है, कभी व्यंग्य भी किया जाता है, ऐसे टोंट किया जाता है. जो काफी लेट हो उसे अक्सर कहा जाता है बहुत जल्दी आ गए. सो भागते हुए वो पहुंचा, और एम हैमल का एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था स्कूल के बाहर ही. प्राइमरी स्कूल इट वॉज. एम हैमल had been teaching there for the last 40 years. 40 सालों से पढ़ा रहे थे, and he was living there also. वहां रहते भी थे. एक छोटा सा अपना गार्डन बना लिया था क्लासरूम के बाहर ही. तो उस गार्डन में वो पहुंच गया ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी हाफते हुए, पैंटिंग. यूजुअली when school began there was a great bustle. This is an important question. How did the school usually begin? When the school began there was a great bustle. आपको पता ही है, आप भी स्कूल में जाते ही हैं, और स्कूल में कितना शोर होता है सुबह के टाइम. शोर कैसे, हलचल होती है, बच्चे आ रहे होते हैं. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. इतनी आवाज, इतना शोर कि बाहर स्ट्रीट तक सुनाई दे. शोर किस चीज का, ध्यान रखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. आवाज किस चीज की होती थी, डेस्क खोलने और बंद करने की. डेस्क खोलना बंद करना, चेयर के साथ ही एक छोटा सा डेस्क, एक टेबल छोटी सी अटैच की जाती है, और उस पर बैठा जाता है. तो उस पर बैठने के लिए उसको ऐसे खोला जाता है फ्लैप की तरह, और फिर उसमें एंटर करते हैं और उसको बंद कर लेते हैं. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन यानी एक साथ. वेरी लाउड, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. आवाज किसकी होती थी, एक साथ बच्चे लेसन रिपीट कर रहे होते थे. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क, क्योंकि फ्रेंच अक्सर लेट जाते हैं इसलिए उसे सारी आवाजें सुनाई देती थी. और
एक साथ बच्चे लेसन पढ़ रहे होते तो उसकी आवाज बहुत तेज उन्हें बोलना होता था, अपने कान पर हाथ रखवा देते थे एबैमल ताकि दूसरे की आवाज ना सुने। टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के उस रूलर की आवाज जिसे वो टेबल पर बजाते थे, मारते थे टेबल पर, तो उससे वो झन की आवाज जो रैपिंग होती रहती है उसके लिए यूज किया। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आज बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन, डिपेंड होना, काउंट ऑन होता है टू बी डिपेंडेंट ऑन। कमोशन, कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन से का माहौल था हर समय क्लास में, तो फ्रेंड इसीलिए लेट जाता था कि टीचर को पता ही नहीं लगता था, वो चुपचाप खिड़की से अंदर कूद कर घुस जाता था, वो इसी पर डिपेंड होता था। लेकिन आज क्या हुआ? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसे शांति जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, यानी संडे को स्कूल की छुट्टी होती है तो बिल्कुल शांति। आज बिल्कुल शांति थी सब तरफ। क्या हुआ था आज, ये पढ़ेंगे हम कल। यहां तक अपना लेसन ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू।